اگر آج ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تو اس کے بعد آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم لائے عمل دیں گے، تو وہ لائے عمل کب دیں گے آپ لوگ؟ آج دیں گے؟ کس قسم کا لائے عمل ہو سکتا ہے؟ تو آج ہی دیں گے تو بعد میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیں کس ٹائم؟ انتظار نہیں، کیوں ابھی تم انتظار کرو نا، تمہاری اور ہماری ڈیوٹی ہے. یہ فیملی کا لائے عمل ہوگا یا پھر یہ سیاسی طور پر پوری پارٹی کے حوالے سے؟ فیملی کا، صرف ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا فیملی کا دیں گے، ہم صرف فیملی کا دیتے ہیں. اچھا، شیر افضل مرود کہتے ہیں کہ اب علیمہ خان صاحبوں کو تحریک چلانی چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو اب آپ چلائیں گے تحریک؟ کوئی آج کوئی لائے عمل میں کوئی تحریک کا اعلان ہو سکتا ہے؟ میرے اس کی کیا باتیں دیکھیے وہ ابھی بھی ایم این اے ہیں، وہ پی ٹی آئی سے ہی ایم این اے ہیں. نہیں، وہ پی ٹی آئی سے نکال دیے گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے آپ ایسی آپ کو کچھ پوچھنے کو نہیں ہے تو آپ اپنا ٹائم اس کے اوپر کچھ اعلان کر دیں، پھر جو اعلان لائے عمل دینا ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. میں جب جیل میں گئی بھی تھی، لوگوں کی گاڑیوں کے لیے لوگ کھڑے تھے، لوگ اپنی بیلز کے لیے کھڑے تھے، بڑے لوگوں نے قربانیاں دی اور ان کے اپنے نام بھی نہیں آپ کو پتا. اچھا علیمہ صاحبہ بھی آپ نے کہا لوگ جیلوں سے نکل کے وہ بیمار ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہیپیٹائٹس کس قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں، جو ڈیمانڈ کرنے والی ان کے چیک اپ جیلوں میں ہر قیدی کا چیک اپ ہو، جو پولیٹیکل پرزنرز خاص طور پہ نہیں ہے، سارے قیدیوں کے چیک اپ ہونا چاہیے. لیکن کئیوں کو پتہ نہیں یہ کیا کھلاتے ہیں کہ جیل سے نکل کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے بیماری میں. یہ دیکھو، یہ قربانیاں دے رہے ہیں، جن کی آپ بات کرنی ہے ان کی بات کرو. جو 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 اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہے ہو ان کے ساتھ آپ کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ یہ دیکھو، میڈیا کو شیطانیوں کے لیے نہیں استعمال کرو. جو اس ملک میں قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں پیچھے، آپ ان کے لیے وہ پاکستانی ہیں. آپ لوگ میڈیا ان کی آواز بنیں کہ کس طرح ان کے گھروں پہ کیا اثرات ہوئے. وہ اپنے حق کے لیے نکلے تھے اور بچے یتیم چھوڑ گئے ہیں پیچھے. یہ قربانی ہے، یہ شہادت ہے، کیونکہ حق کے لیے، اپنے حق کے لیے جو نکلتا ہے، جو ایک کاز کے لیے نکلتا ہے، اگر وہ ان کی اموات ہو جائیں تو وہ شہادتیں ہیں. تو یہ شہید ہیں سارے. بات ان کی کریں، غداروں اور ان فضول قسم کے لوگوں کے لیے آپ ٹائم نہ ضائع. علیمہ صاحبہ بھی آپ نے کہا کہ اب ہم آج لائے عمل دیں گے. پچھلے 8 مہینوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو اگر آج آپ لائے عمل دے بھی دیتے ہیں لیکن پارٹی دوسری طرف سے آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتی، تو کیا اس کا کوئی فرق پڑے گا آپ کو، حکومت کو یا خان صاحب کے حوالے سے؟ اپنا لائے عمل دیں گے خود اور فیملی اپنا دے دے. کوئی امپیکٹ ہوگا اس کا اگر فیملی ایک طرفہ طور پر اکیلے لائے عمل دیتی ہے؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ ہر انسان اپنی کوشش کرتا ہے. ہم کس لیے یہاں سڑک پچھلے 8 مہینے سے ایک سیکنڈ ہم سڑک پہ بیٹھے ہیں، انسان ہیں. ہم جتنی سوچ اور سمجھ ہوگی ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں نا. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اس کے اوپر اللہ کوئی راستہ نکال کے دے. دعا تو ہم نے آخر میں اللہ سے ہی مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ پاک ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کا موقع دے، صحیح فیصلہ. ٹھیک ہے. اور ہمارے اندر، اور ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ کے اوپر ہے نا. بہت شکریہ. اگلا تو جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلہ کو ہم فیصلہ کرتے ہیں اور دعا مانگ کے کرتے ہیں. ہمیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اچھے نتائج کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں. لاہور میں جو سینئر قیادت اس وقت قید ہے، تو انہوں نے بھی پیغام گزشتہ روز جاری کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ملاقات کا کوئی بھی موقع ملتا ہے تو اس کو ضائع نہ کیا جائے. لیکن موقع کب ملا ہے یہ ان کو کہ بھئی آپ کے میڈیا نے یہ سارے یہ جو آپ کو پتہ ہے ایجنسیوں کا. دیکھیں ہم تو یہاں 3 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس تو آپ نے اس سے پہلے کہا تھا نا کہ بھئی اگر ایک ہی ملاقات ہوگی تو آگے جا کے پھر یہ روک دیں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ ملاقات ہو گئی ہے. لیکن میں تو ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا کریں گے. لیکن یہ اس چیز کو جواب بنا کر کہا گیا کہ اب ملاقات ایک ہی بھی ہو تو ہو، بعد میں دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں ابھی بھی وہی کہوں گی، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا ملاقات نہیں کریں گے. بلائے کسی نے نہیں، آپ سامنے آپ وٹنسز ہیں، آپ تو یہاں وٹنسز ہیں. کسی نے آ کے بلایا، کسی کو بلایا پچھلے 3 ہفتوں سے؟ آپ بتائیں نا. نہیں 3 ہفتوں سے، جب گوہر صاحب نے پرپوزل تو ہمیں دیا تھا 19 کو، اس کے بعد تو ہمارے سے نہیں کسی نے بات کی. دیکھیں نہ انہوں نے بلانا تھا نہ بلایا. یہ کہانی، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے ہماری فیملی کے اوپر، آپ کے اس بیان نے سارا کام خراب کر دیا تھا. جو چیزیں چل رہی تھی تو اسی لیے پھر اس کو بیک. فکر نہ کریں، انہوں نے میرا ہی نام لینا تھا. کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے میری بات سنیں، پہلے آپ مجھے بتائیں
बयानिया भी इन्होंने बनाया, झूठ भी इन्होंने बोला, खुद ही बयानिया बनाए, यहाँ पे आके किसी को बुलाए नहीं। मैं फिर से आपको बताती हूँ एक मुलाकात पे क्यों हम बात कर रहे हैं। जब हमने गौहर साहब को कहा था उनके सारे हकूक बहाल करवाएं, हम इमरान खान के हकूक के लिए बैठे हुए हैं और अभी भी बैठेंगे और हम पार्टी को भी कहेंगे कि आप इमरान खान के सारे हकूक बहाल कराएं, उनकी कैद तनाई, उनकी इलाज और कैद तनाई। आप 4.5 महीने से तो हमारी ये बात सुन रहे हैं, तो कोई हमने नई बात की हो तो फिर और मैं और क्या बात करूं, आपको अगर उसी की नहीं समझ आ रही। मैं तो बारी बारी एक ही चीज कह रही हूँ, मैं तब से कोशिश कर रही हूँ समझने की कि मैं कौन सी मैं गलत तरीके से कह रही हूँ कि आपको ये बात किसी को, मीडिया को भी नहीं समझ आ रही और फिर भी आप वही सवाल पूछते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, इमरान खान के ये सारे लीगल और लॉफुल हकूक हैं, उनका इलाज उनका हकूक है, उनकी 18 लोगों की हफ्ते में अदालत ने इजाज़त दी हुई है, उनकी किताबें, उनके बच्चों से बातचीत आप लोगों को भी रटी हुई है, हमें भी रटी हुई है। अब आप मुझे बताएं कि 18 लोग एक हफ्ते में जो मुलाकात कर सकते हैं तो कैद तन्हाई ख़त्म होती है, अगर उनका टीबी बहाल होता है कैद तन्हाई ख़त्म होती है। हम उनके कैद तन्हाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं और जब आप कहते हैं कि शुक्र करो, जब मुझे हमें कोई आके कहता है कि शुक्र करो कि एक ही मुलाकात होगी, तो हमें ये तकलीफ होती है कि बात हमारे हकूक की नहीं हो रही, बात इमरान खान के सारे हकूक की बहाली की हो रही है। इसलिए आप वहाँ पे ना ले जाएं इमरान खान के हकूक को, जहाँ पे हम उसको उससे तवज्जो हटा के आप हमारे हकूक की बात करना शुरू कर दें, उसका तमाशा बना दें। और इसका ये सारी गेम है इमरान खान से तवज्जो हटाने की। और आप फिक्र ना करें, हम फैमिली बैठी हुई है, हम किसी को इमरान खान के ऊपर से तवज्जो हटाने नहीं देंगे। मैडम ब्रिस्टल गौहर का जो मैसेज आया मुझसे नकवी से मुतल्लिक और मुलाकात कराने का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपको जेल को जो है वो दरखास्त देनी है और दरखास्त नहीं दी गई, तो आप कह रहे मुलाकात के लिए बुलाया नहीं है। जब तक दरखास्त नहीं ये बैरिस्टर गौर ने नहीं कहा। अच्छा, कहाँ कहा? उन्होंने नहीं कहा। मुलाकात का तो कहा गया था कि नहीं, दरखास्त थी बैरिस्टर गौर ने हमें खुद कहा कि वो गलत चीज़ थी, क्योंकि जो फुल बेंच, जो लार्जर बेंच का ऑर्डर है, हम उसको बाईपास कर रहे हैं। वो तो 18 लोगों के लिए है ना लार्जर बेंच का। तो अब एक बंदे की दरख्वास्त जब डालते बैरिस्टर गौर ने कहा था, ये उसको नेगेट कर रहा था। 5 बजे के करीब होती थी, तो ये भी बैठे हैं। पिछली दफे टाइम तो 2 से 4 है ऑफिशियली जो आपका टाइमिंग है। 2 से 4, दूसरे तो बहुत पहले पहुंचे थे। पिछली दफा भी हम टाइम पे पहुंचे थे, लेकिन ये तो बहाने और जाहिर है किसी ने हमें खैर बात भी नहीं की थी, कोई हमारे से यहाँ बात करने भी नहीं आया। जेल हुकाम ने किसी ने हमारे से बात की। आप लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की है? अभी इतला SHO साहब को कहा है कि आप उनको इतला दे दें, हम आगे काम दे दिया। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की पिछली तरफ फैमिली जो है उनको अलाउ किया गया था और आज जो है वो उनको दोबारा अलाउ किया गया है या नहीं? उनसे हमारा कोई रब्ता नहीं है, नहीं ना उन्होंने बताया ना हमने पूछा। तो अभी एक बहन मुलाकात करेंगी अगर आपको अलाउ किया जाता है वहाँ से? अब ये नहीं पता कितनी बहनें अलाउ होती हैं। अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो आप लोग एक जाएंगी? नहीं जाएंगे। हम तो पिछली दफा भी इंतजार में बैठे थे कि जाए। नहीं, पिछली दफा कहा गया कि आप लोग लेट आए हैं ना? तभी लेट नहीं। तभी टाइम पे थे, बल्कि बुशरा अब्बी की फैमिली हमारे बाद आई थी, उनको इन्होंने भेज दिया था। नहीं दरखास्त की। आज आप पटियाला जेल आई हैं, खान साहब से मुलाकातों का दिन है, क्या आपने आगे इंतजामिया से रब्ता किया है अपने आने के इतला का, और उन्होंने क्या कहा है आपसे? लेकिन मेरे ख्याल में आपको शायद यहाँ का सिस्टम, आप नए लोग को पीछे कर लेना, कैमरा पीछे कर लेना, आप मेरे मुंह के ऊपर आ रहे हैं, पीछे प्यारे भाई थोड़ा सा थोड़ा पीछे हो गया, रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अगर चुप कर तो मैं बात कर। जी मैडम।
जी बताएं सवाल। जी आज आप लोग टाइम पे पहुंच गए हैं, आप लोगों ने इतला दे दी है। आज नहीं नहीं, एक सेकंड, हम हर दफ़ा यहाँ पे होते हैं और टाइम पे होते हैं। ये आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, देखें हम 3 बहनें हैं, हर चीज़ का तमाशा तो हमारी मुलाकातों का तो तमाशा नाना बनाए, आप लोग ही बना रहे हैं ना। हम लोग क्यों बना रहे हैं? नहीं, खान साहब देखिए, हम लोग तो यहाँ पे हर जगह मौजूद होते हैं, हर दफा मौजूद होते हैं। आपने हमेशा सोशल मीडिया को अब आप टारगेट करना शुरू हो गई हैं। हम लोग आप 2.5 साल हो गए आपके साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप कह रही हैं कि हम तमाशा बना रहे हैं। हमें क्या जरूरत है आपकी मुलाकातों का तमाशा आपने मेरे बनाने? से सवाल पूछा, आज आपने क्या पूछा था सवाल? पिछले दफा क्योंकि आपको कहा कि आप लेट हैं, इस वजह से मैंने ये किसने सवाल कहा? पूछा। आप तो इधर ही थे, आपको तो पता हम लेट नहीं थे, तो आपने क्यों ये सवाल पूछा कि किसने कहा था? फिर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, किसने कहा था हम लेट हैं, जब आप लोग यहाँ सारे मौजूद थे हम लेट नहीं थे? तो आपने क्यों ये मेरे से सवाल पूछा कि आपको पिछली दफा कहा गया था? किसने कहा था? जेल इंतजामिया ने बैठा है। जेल इंतजामिया ने नहीं कहा था, आपको कहा था? जी बिल्कुल, हमने रिकॉर्ड है उनको। नहीं नहीं, किसने आपको कहा था? ये जहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा बुशरा बीबी साहबा की फैमिली जो है वो आप पहुँच चुकी थी, तो इस वजह से जो है वो किया जा रहा है। देखिए आप बेहतर समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अच्छा ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, तो उसके बाद क्या रास्ता है कि इमरान खान साहब का अलकादिर केस में जो उनकी सजा मुअत्तली या अपीलों पर आगे उसका क्या लाया अमल है, कौन सा फोरम? सुप्रीम कोर्ट ने तो मैडम मुस्तरद किया है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएंगे। अच्छा इसमें बताइए बेलों के लिए तो वहीं जाएंगे। मैडम आपका एटीसी कोर्ट में केस चल रहा है और कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड में वो दाखिल हो चुका है, हो सकता है कि आपको सजा भी हो जाए उस पर। तो कल गौहर साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि हम मजीद गिरफ्तारियों के और खान साहब की फैमिली के उसके हक में नहीं है, तो क्या लगता है उस केस के हवाले से आपको? तो कितने इमरान खान जेल कैद में नाहक कैद नहीं है ना, उनके ऊपर भी झूठे केसेस हैं, बुशरा बीबी पे भी हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर झूठे केसेस हैं। तो यहाँ जब रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, इंसाफ का निज़ाम ही कंट्रोल कर रहे हैं, फैसले ऊपर से आते हैं, अदालतें तो फैसले कर नहीं रही, केस तो सारे झूठे हैं, तो इसके अंदर कौन सी बड़ी यही बात है ना कि झूठे केस किसी पे बनाकर ये किसी वक्त आपको जेल में डाल देंगे। अगर आपकी कल आपकी बात पसंद नहीं आएगी तो आप भी जेल में जाओगे, आप इसलिए डर के रहोगे कि तो आपको नहीं पता कि किसी वक्त आपको उठा के ले जाए। तो ये तो अब हर पाकिस्तानी अगर अपने हक के और लिए नहीं खड़े होंगे और जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तो हर पाकिस्तानी को फिक्र करनी चाहिए कि कल कोई भी उनको अगवा भी कर सकता है, भत्ता भी ले सकता है, उनके लिए कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में आजकल, क्योंकि अदालतें तो बिल्कुल बेमानी हो गई हैं, उनको जो ऑर्डर आएगा वो वही वाली सजा सुना देंगे। अच्छा जेल इस्लाहत से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुहेल खान अफरीदी भी शरीक हुए, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी, लेकिन इसके बरक्स जो है उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि अडयाला के बाहर कोई वेटिंग एरिया बना दिया जाए, फैमिली जो है यहाँ पे परेशान होती है, धूप में रुकना पड़ता है। नहीं हम परेशान नहीं, तो ये सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे मुतालबा किया है। उन्होंने कहा था लोग परेशान होते हैं जो बाकी जो कैदियों में आते हैं, जो बाकी कैदी नहीं है, जो उधर आपने देखा है कि वो जो उधर बैठे होते हैं, वो जो यहाँ रूटीन में मुलाकात के लिए आते हैं, हज़ारों लोग बैठे होते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही तजवीज़ दी थी कि वो लोग बाहर बैठे होते हैं, देखें धूप ठंड में वो मुलाकातों के लिए फैमिलीज छोटे बच्चे बैठे होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बात की होगी। अच्छा पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए तो बाइकाट का जो है पैगाम था इमरान खान साहब का किसी भी हुकूमती इजलास का, तो ये अदालती एक जुडिशल इस्लाहात के में ये सुहेल अफरीदी की शिरकत जो है, क्या वो बाइकाट नहीं करना चाहते थे? उनके लिए कोई ऐसा पैगाम नहीं है? हमारे साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए हमें नहीं पता। अच्छा मैडम, अच्छा ये बताइएगा अलीमा खान साहिबा, इस वक्त पीटीआई की तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं मुकम्मल तौर पर हम देख सकते हैं कि ज़ीरो पर आ गई है। सिर्फ एक दिन अडयाला के बाहर जो फैमिली आती है और ये कुछ एका दुका कारकुनान आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या वजह है, इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं पीटीआई? ये नौबत आ गई है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की जा रही। देखिए जितना आपको अंदाज़ा नहीं है, और मैं क्या शायद आपको अंदाज़ा हो
कि लोगों को ये रातों को लोग हमें बताते हैं कि फ़ोन करके धमकियां आती हैं कि तुमने जाना नहीं है, मतलब बहुत धमकियां देते हैं और बड़ी सख्त संगीन थ्रेट्स देते हैं। तो बल्कि पिछली दफ़ा तो हमने तजवीज़ दी थी जो लोग जिनको थ्रेट्स मिलती हैं कि आप सारे जमा होकर अपनी असेंबली में, अपने पार्लियामेंट में लोगों को आगाह करें। अदालत देखें, पार्लियामेंट ऐसा फोरम है जिसके अंदर आप सारा कुछ हर चीज़ पे बात कर सकते हैं। सही, आपको पता है ना कि जो चीज़ पार्लियामेंट में बात की जाती है उसके ऊपर आपके ऊपर FIR नहीं दर्ज हो सकती। तो ये तो हमने कहा कि देखें, तजवीज़ दी थी कि आप पार्लियामेंट में जो बताते हैं हमें कि उनको धमकियां आती हैं, तो आप पार्लियामेंट में जाएं, असेंबली में जाके खड़े हों और इकट्ठे सारे खड़े हो जाएं और बताएं जो उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और कौन कौन उनको धमकियां दे रहे हैं। और याद रखें, इमरान खान ने तो, हमने वो क्लिप देखा उनके जलसे का जिसमें उन्होंने बड़े गुस्से में कहा था कि अगर ये आइंदा तुम्हें धमकियां दें, वापस उनको धमकियां दो, यही कहा था ना। हाँ, अलीमा खान साहब, आपकी जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी वो इसलिए की गई थी कि ये आईनी अदालत जो है वो आपकी सुनेगी, जो जमानत की अपील है। तो फिर अब आप आईनी अदालत की तरफ जाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ओके मैडम, थैंक यू।